Tell me. Yes, sir. There is stress on it. Very good. ठीक है. See, this next part that I'm going to basically explain now, it'll be relevant for every single one. It doesn't matter which field a person is from. It doesn't matter what their expertise is, focus is. The part that I'm going to discuss now, design approaches. Okay. This is going to be relevant to every single one of us. Why? Because in UI UX design, we learn about these processes or frameworks. Okay. And all these frameworks are basically there to solve problems. Okay. So these frameworks are there for problem solving. Wow, this K is really, really ugly. I couldn't manage to make it good. Let's see if I can do a K properly. Yes, this. Yeah. So these frameworks that I am basically going to talk about now, one can apply them in every single stage of our life and still manage to, solve problems in a very well-defined manner. I encourage all of you, especially our software design team, to start off their software projects from now onwards through these one of these processes. Okay. See, the first thing is every single design team or software development team out there has their own design thinking process or project management process. But there are some very famous frameworks in UI UX design that we learn about. The most important one and the one whose variants you can use is called the Stanford design thinking. Okay. This particular approach is called the Stanford design thinking because Stanford University was the first institution to devise it. And after that, this framework basically appeared every single place. Okay. There are some other design thinking approaches as well. So this is the very famous five-stage design thinking process in which you have empathize, define, ideate, prototype, and test. Okay, it's the design Stanford design thinking. There are some other very famous design thinking approaches as well, in which one is the double diamond. So in the double diamond, you have basically design and develop as two major parts of the process. Then this design and develop is broken down into individual stages as well and whatnot. Okay, that's also really famous within the software development circles. But you can design any kind of a फ्रेमवर्क या एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलप करने के लिए यूजिंग दिस बेस टेम्पलेट. ये आपका बेस टेम्पलेट है और इसको देखकर यू कैन बेसिकली डू व्हाटएवर यू वांट in UI UX design. And I'm just talking about the design process, development process नहीं जहां पर you are using coding you are programming to develop applications or websites. I'm only talking about the design part. In design follow all these steps as well to create some real. Okay. Let me give you a very small example for this. Okay. I have not been able to map this to a proper solution, but still I'll try. Suppose you have a design problem, you have a problem that you want to solve from real life. Okay. And the suppose the problem is about waste collection or waste management. Okay. Management.
Good job to Idris, because I was able to write it properly using just a mouse. Anyway, waste management is your problem. So the first step of design thinking is empathize, right? So we have a couple of other stages as well, right? But in empathize, you properly try to um, put yourself in the shoes of a user. Okay, you only know about a certain problem right now, and the problem is waste management is not done properly. Okay, not done properly. I'm really sorry about the bad handwriting. I don't have the writing pad with which I can annotate it. So yeah. So management is not done properly is your problem right now. What does it mean that it's not done properly, right? Now, the first, you understand users' needs in this first step in creating effective design solutions. Empathize basically means you put yourself in the user's shoes. Okay, so actually, both of these first parts you can term as research part. जो आप research करते हैं अपने software products को related, ठीक है? The first two steps are related to that research. And empathize especially is the step where you think about the user. You put yourself in the user's shoes and you understand the problem properly. ठीक है? So the first part, research, or these two, empathize, basically mentions that you think about the users, you think about what problems they are facing, and you try to understand the problems properly. This might mean you have to do some research as well, जैसे कि you might go to the users and interview them, which is called primary research, right? You can do primary research to understand, to empathize with the users very well. There are a lot of different methods through which research is done too. I teach them in my boot camps when I have to, for example, explain the research and explain how we can collect data for a really good software product. But this is not the space for that. Anyway, so empathize the users with the users. And once you've done that, once you've understood the exact problem, then you move to the define part. We have defined the problem as a separate stage in design thinking because we believe, as designers, we believe that if you are able to define the problem properly, you're able to focus down to the problem properly, you're half done. Okay. 1 second. Okay. So what we say in UI UX design is if you are defining the problem properly, you are half done. You're halfway there. So defining the problem, articulating the problem clearly is also going to help you solve the problem properly. क्योंकि जब तक आपको exactly पता नहीं होगा कि problem क्या है, तब तक you will not be able to design a proper solution. So जहां से आपने start किया था, this statement that waste management is not done properly, this is very vague. It can have 100 different meanings, right? But at the same time, if you're trying to define this problem properly, you will basically empathize with the users. You'll think about why is waste management not done properly? Are the users actually taking out trash regularly or not? Is the municipality of the area, the local municipality, making sure that there are vehicles that take the trash away regularly or not? Do you understand? Or do you need a whole new system in which vehicles come, okay, in which vehicles come and the users do take out the trash, but there is no coordination between them, right? Maybe that is also the problem. Vehicle comes at 10 a.m., but the user is taking out trash at 1 p.m.
right? Then the trash will remain there the whole day up to the next day. So this is not proper management of the trash, right? One could think about a problem solution for this problem. Let's take the last one as the prime problem. So you did the empathize, you did the definition of the problem. You understood that vehicles do come. Okay, the vehicles that take out the trash, they take the trash to the dumping site, they do come. The vehicles come at 10 p.m. at a certain place. Obviously, they come at 11 p.m. at other places, 12 at other, right? So the vehicles do take a round of the whole area at regular intervals of time. Now, you know that the users or the people who are the customers in this case, they will need to know what exact time the trash car comes. Okay, now, ये है कि like how we Indians have solved this problem is using those loud speakers, है ना? सबको पता ना है उन लाउड स्पीकर्स के बारे में, those गाड़ी वाला घर से आया, है ना? So that is one of the ways we have designed the solution. We have decided the solution of this problem to be. But is that a real good solution? No, that is not a good solution. Sometimes people might not hear that announcement because they might be somewhere working or doing something else. Sometimes like this exactly creates noise pollution, right? Somebody is working really in a really important meeting, and the really loud speaker outside starts saying gaadi wala ghar se aaya, please take out the trash. So this is not a good solution, right? If you have to design a solution to this problem as basically a software designer, right? You can basically think of solutions, but this is not the place where you think of those solutions. In the define stage, you will define the problem properly. So we have understood the problem. The problem is the vehicles come at a certain time, but the trash is taken out at a different time. So there's a clash of timings, right? So timing clash. Now, what you will do is once you have done all this research, you have exactly found out what the problem is, why waste management is not properly done, you move to your team, okay, the software development team, and you go on to a stage where you ideate multiple solutions. You think about multiple solutions. A, we should use a loudspeaker. Now, the loudspeaker, whenever the vehicle comes, the loudspeaker will start blaring out these notifications. Please take out the trash. Please take out the trash. This is one solution that your team could be thinking about. But since you're software developers, right, you'd be more interested in creating a software solution to it, right? Now, think about this issue and tell me whether there's a software solution here for this, because we're about now I think there's about 18, including me, 19 people here. We can do a really good what we call as a brainstorming session. What brainstorming basically means is everybody throws out their ideas. Okay, it doesn't have to exactly be, for example, an application, or it doesn't have to be a solution related to digital design, but tell me solutions for this problem. Everybody in the chat can mention their own solution for this problem. You can speak out the solution as well. Please raise your hands and start speaking of what do you think, how we can solve this problem. In design, जो design teams होती है ना बड़ी बड़ी, they actually do this. Okay, they actually do the research properly, and then they basically define a proper time in which they do brainstorming sessions. Brainstorming sessions होती हैं एक meeting जैसे, ठीक है? You have a big table, you have all the design team there along with some other people as well. Brainstorming sessions में you keep some technical people there as well to understand, to basically keep you guys in limit. आप ये नहीं सोच कि हम कोई स्पेसशिप बनाएंगे उसी में ट्रैश रखेंगे और आउटर स्पेस में फेंकेंगे. So what I basically mean is so that you don't think of unfeasible solutions that you cannot basically execute. Similarly, you can keep somebody of really good rank in your company as well in those sessions so that they tell you that भाई साहब इसका budget नहीं है, ठीक है, we cannot basically implement the solution, or what we can or cannot do.
Abhishek, go ahead. So, like in Poland, there are like dustbins outside their homes, and the just वो गाड़ियाँ जाती है वो खुद उठा के लेके जाती है पोलन से होता है ऐसा। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, प्लीज फिर से बताइए आपका सोल्यूशन क्या है हेलो, इसके लिए। जी, I'm audible sir देयर इज अ now. बिट ऑफ अ मफल। हाँ, बट देयर इज अ बिट ऑफ अ मफल, आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, प्लीज प्लीज स्पीक आउट नाउ। सर मैं ऐसे कह रहा था कि जैसे फोरन्स में नहीं होता कि ट्रैश कैंस होते हैं घर के बाहर, वो जस्ट हाँ, गाड़ी सुबह आती है अपने आप ही उठा के लेके जाती है, तो अपने ऐसा ही आप ही। सिंपल। बहुत अच्छे, यस सर, बहुत ये अच्छे। सिंपल गुड सोल्यूशन हो गुड सकता है। सॉल्यूशन, वेरी गुड। अदर्स? Everybody, please mention how many people are here. We have about 19. How many people are here? 19 people. Please mention your solutions in the chat. जल्दी से। Everyone, please mention your solutions in the chat for this. कुछ भी हो सकता है. It can be any solutions. Clearing trash by using lava like America does it in a room furnace. ठीक है. Your in brainstorming session, like I mentioned, there's never going to be a restriction on the solutions, right? This is also a good solution, but it basically takes care of the trash in the end. It does not take care of the problem that we have, that the trash is not actually reaching the dumping site properly. It is staying there on the street for a long time. You see, in a brainstorming section, like I mentioned, we you can also redefine the problem as well. Okay, because in ideate, you're basically focused on solution more. Okay, what it can mean is you sometimes will be able to define the problem more properly as well, but generally we don't do this. Okay, if it's a big team, up to द प्रॉब्लम डेफिनेशन आपको सब स्टेक होल्डर्स ने बोला है कि हाँ इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ गए, it will not align with the company, so we don't do that. Okay, so right now, for example, Mridula basically mentioned a solution that's not solving the problem we were targeting. We were targeting the clash of timings, right? So हम उसी प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे. We can make an app with features like location, request pickup, daily route of vehicles visible to every user, weekend pickups. बहुत अच्छे. Akash, yes, go ahead. Sir, dustbin is filled, then they can collect. आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छे से. Now audible. हाँ, there's a bit of a muffle, but समझ आ रहा है. Sir, I'm talking about we can use sensors in the dustbin. Like they, if they are filled, then the municipal corporation they can come and collect that from the बहुत dustbin. अच्छे. This is also a really good solution. बहुत अच्छे. Please write it down in the chat as well. Okay, sir. बाकी सब भी, please think and tell me. चलिए, we've spent quite some time on this, but we'll move onwards. So, हाँ, तो ideate stage में you will come up with a solution, right? Most probably, if it's a software team, हम एक software solution ही ढूंढेंगे इसका. जैसे कि ये sensor वाला option था, this was really good. Please write it down in the chat, Akash, okay? But
for a software team, the most feasible solution will be the one Ashwini has mentioned in the chat. Okay, so please keep some reactions on that because that was a good solution. So you create an application that the trash takers will have on their phone and the users will have on their phone as well. Users basically mark that our trash is ready to be taken. The basically the other side, the people who are taking out the trash, the truck owners, right? So they get a notification where whenever the user marks their trash can as filled, they can get a notification, and based on that, they will know that trash cans in an area are filled. We have to take them out, right? So such an application, designing such an application, what features will need, the exact solution for it, all of that we can do it and do in Ideate. Okay. Some people in the ideate stage itself will start creating structure of the screens. What will this application look like? Okay, what features it will have? We do that in itself. You actually as well. Am I audible? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible? Yes, अब sir, ठीक yes, होना चाहिए. ठीक है. yes, sir. So what I was saying is some people actually define a lot of things in Ideate itself. लेकिन उसके बाद you have the prototype where you create a false application. ठीक है, आप एक prototype बनाते हो एक application का, and you create this prototype to see whether this application will work in real life or not. क्या इसके features जो हैं real life में काम करेंगे अच्छे से या फिर नहीं. ठीक है. और once you do that, you can test on that prototype. आप for example वही prototype जो है users को दे सकते हो. You can test whether the application will actually work in real life or not. ठीक है. और टेस्टिंग के दौरान आपको पता चल जाएगा कि यूजर्स को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ये प्रोटोटाइप को यूज करने में. ये सब चीजें जब आप करोगे you will basically do a cycle of testing and prototyping यहाँ पर. ठीक है. टेस्टिंग कर लिया, प्रोटोटाइप में चेंजेस लाए, टेस्टिंग कर लिया, प्रोटोटाइप में चेंजेस लाए, एंड व्हेन यू हैव अ फाइनल प्रोटोटाइप रेडी, ठीक है, उस प्रोटोटाइप को आप कोडिंग करने को भेजोगे. और वंस दैट प्रोटोटाइप इज रेडी, once you send this prototype to the software team, they will create the exact same thing, exact replica of that prototype, but actually in software. ठीक है, something that you can install on your phone and your website, and you can basically use that as a product. That is how real life software teams work as well. अब software teams क्या करती हैं? They don't always use the same names in their processes. ठीक है, वो कुछ अलग अलग चीजें भी करती हैं. देखिए जैसे कि ये हो गया UI UX प्रोसेस. ठीक है, किसी कंपनी ने ऐसे भी प्रोसेस कर लिया कि हम जी करते हैं पहले रिसर्च. ठीक है, रिसर्च में ही एम्पैथाइज डिफाइन सब कुछ कर लिया. उसके बाद डायरेक्टली हम वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग करेंगे, यानी कि हम पेंसिल से या पेन से स्केचेस बनाएंगे एप्लीकेशन के. ठीक है, उन्हीं को एज प्रोटोटाइप्स यूज करेंगे. फिर हम इस पर एक विजुअल डिजाइन का प्रोसेस चलाएंगे, यानी कि इनको हम खूबसूरत बनाएंगे, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और फिर हम इनको टेस्ट करेंगे यूजर्स के साथ. ये भी एक यूएक्स प्रोसेस है. ठीक है, एनी कंपनी कैन टेक दीज 4 स्टेप्स एज वेल, ताकि प्रोसेस छोटा सा हो, शॉर्टर हो, इसमें 5 स्टेजेस ना हो, 4 ही स्टेजेस हो. कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ 3 स्टेजेस में सब कुछ करे. पहला रिसर्च, दूसरा प्रोटोटाइप और तीसरा टेस्टिंग. ठीक है, और मे बी वो फिर प्रोटोटाइपिंग में ही विजुअल डिजाइन भी कर लें. तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन टीम. ठीक है, तो ये जो यूएक्स प्रोसेस आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे भी कभी कभी यूएक्स प्रोसेस को लिया जाता है. रिसर्च किया, वायर फ्रेमिंग किया, विजुअल डिजाइन दिया और टेस्ट किया. तो प्रोडक्ट डिजाइन जो है इन इटसेल्फ दैट इज अ बिट डिफरेंट. ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन में कभी कभी देयर आर सम एडिशनल स्टेप्स एज वेल. बट अगर आपको डिजाइन थिंकिंग वाले ये 4-5 स्टेप्स समझ आए हैं अच्छे से, तो आप प्रोडक्ट डिजाइन को भी लाइक इनके ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो आइडिया जनरेशन बेसिकली रिसर्च. ठीक है, ठीक है,
और फिर रिसर्च एनालिसिस, जो आप रिसर्च और आइडिएशन यहाँ पर दोनों एक साथ लिए गए हैं, ठीक है। रिसर्च भी यहाँ पर होता है और आइडिएशन भी यहाँ पर हो गया। ये दोनों उठाए आपने, फिर आपने उसको एनालाइज किया, उस एनालिसिस के बेसिस पर आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की और रिफाइनमेंट किया उस प्रोटोटाइप का, ठीक है। और फिर फाइनली आपने फाइनल प्रोडक्शन में चीज को डाला। आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर प्रोसेस है, ये दिस इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द रियल लाइफ प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। जो रियल लाइफ में होता है, दिस इज मोर क्लोज टू दैट, ठीक है। लेकिन अब ये है कि एक मेच्योर कंपनी दे विल फोकस अ लॉट ऑन दिस प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग और प्रोटोटाइप का रिफाइनमेंट, वाइल मोस्ट कंपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं जहां पर हमारे पास ज्यादा फंडिंग नहीं होता है, वो इन स्टेप्स को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट्स का लुक एंड फील उतना अच्छा, उतना प्रोफेशनल ग्रेड नहीं होता है, ठीक है। But eventually, if those companies, for example, are getting good funding as well, they're, for example, in a position जहां पर उनकी एक extensive design team हो, तब वो भी ये सारे steps कर सकते हैं। ठीक। Actually, I don't think we have too much time now, right? The time is about to end. लेकिन जो हमारा मेजॉरिटी पार्ट ऑफ हैंड्स ऑन पार्ट जो हमारा था आज के सेशन का, वो रहता है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव फास्टर टुवर्ड्स दैट, ताकि कुछ ऐसा हो दैट यू विल बी एबल टू टेक आउट फ्रॉम टुडेज सेशन। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट आप इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। हम प्रोटोटाइपिंग में स्टार्ट करते हैं वायर फ्रेमिंग से। व्हाट इट बेसिकली मींस इज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी सारी स्क्रीन्स का। जो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो हम उनका एक स्केलेटन पहले बनाते हैं वायर फ्रेमिंग में। अब इसकी एग्जांपल आप ये देख लीजिए। आपका CNN का वेबसाइट है ये, ठीक है। और इस वेबसाइट में आप यहाँ से लेफ्ट साइड में काफी सारा कंटेंट देख रहे हो, लेकिन अगर आपको इसका वायर फ्रेम बनाना होगा, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये भी एक लो फिडेलिटी वायर फ्रेम है, ठीक है, ऑफ सम एप्लीकेशन। दिस इज फॉर द अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यू आर सीइंग एनोटेशंस एज वेल। हर एक पार्ट के लिए आप उसके बाहर कुछ एनोटेशंस देख रहे हो, ताकि आपको पता चले कि व्हाट ईच ऑफ दीज फील्ड्स इज अबाउट, ठीक है। ये भी वायर फ्रेमिंग में आता है। और फिडेलिटी यानी कि हर एक वायर फ्रेम का क्वालिटी क्या होगा, यू कैन स्केच, ठीक है। स्केचेस का एक फिडेलिटी होता है जिसको हम लो फिडेलिटी कहते हैं। लो फिडेलिटी में, लो फाइव और लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स में वी ओनली कीप स्केचेस, ठीक है। फिर मीडियम फिडेलिटी भी एक फिडेलिटी होता है, ठीक है। यू कैन टेक बोथ ऑफ देम एज मीडियम फिडेलिटी एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि दिस वन इज नॉट एग्जैक्टली, दिस वन हैज सम कलर्स एज वेल, ओके। आपके पास कलर्स का भी हिंट आ रहा है इस वाले में, तो आप जरूरी नहीं है इसको लो फिडेलिटी कहो। तो फिडेलिटी किसको लो फाई कहेंगे, किसको हाई फाई कहेंगे, ये भी एक अच्छा डिस्कशन है, इसको हम स्किप करते हैं अभी। फिलहाल के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं और हम उनको हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स की तरफ ले आना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हाई फाई वायर फ्रेम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें आपको कलर्स भी दिख रहे हैं, टाइपोग्राफी भी दिख रही है और सब कुछ सेट इन स्टोन दिख रहा है। अगर आपको एक यूजर फ्लो बनाना हो ना वायर फ्रेम्स के थ्रू, आप ऐसे बनाते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रिएट फिल्टर या फिर एडिट फिल्टर पेजेस एक यूजर फ्लो है, और उसको सिर्फ वायर फ्रेम्स से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए रखा है so that you guys will know what exactly we do in this whole process. Okay, now what we will do is, these principles we can skip because it's a lot to cover for a small session like this. हाँ, जो टूल्स यूज होते हैं ना वायर फ्रेमिंग के लिए, फर्स्ट पेपर एंड पेंसिल स्केचेस, ठीक है। यू हैव पेपर एंड यू हैव अ पेंसिल, यू कैन ड्रॉ सम स्केचेस। आई होप आप सबके पास अभी
you have available some paper and pen, pencil or pen, whatever it is. We will take some extra time in today's session as well. ठीक है, थोड़ा सा और extra time हम लेंगे, लेकिन this activity we will do because based on that activity हमारा एक छोटा सा assignment भी रहेगा. तो टूल्स जो इसके लिए यूज होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिग्मा, एक और है बल्सामिक. इट्स नॉट यूज्ड एज मच नाउ, लेकिन बल्सामिक एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ दिस होल डिस्कशन ऑफ वायर फ्रेमिंग एंड एवरीथिंग. विम्सिकल भी है, लाइक आई टोल्ड यू फिग्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. ठीक है, और देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं. ये जो एक्टिविटी मैं छोटी सी बोल रहा था इसके बारे में, एक्चुअली ये रीडिजाइन प्रोसेस अब नहीं हो सकता, उतना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं. ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पर, आई विल टेक द स्क्रीन एंड आई विल शो यू गाइज हाउ यू कैन टर्न ए रियल लाइफ स्क्रीन इनटू अ वायर फ्रेम. और उससे आपको ये पता चलेगा कि वायर फ्रेम्स के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, ये एक्सरसाइज जब हम कर लेंगे उसके बाद एक ही चीज है, यू गाइस विल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप जैसे भी उठाइए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. आपके स्क्रीन पर एक डिजाइन चैलेंज का कोई फोटो उठाइए या फिर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट उठाइए. आप इस डिजाइन चैलेंज का सॉल्यूशन जब डिलीवर करेंगे उसके बेसिस पर यू विल गेट सम रिवॉर्ड्स फ्रॉम अस. ओके, और आपके सॉल्यूशंस व्हाटएवर यू आर बेसिकली डिलीवरिंग, दोज विल बी ग्रेडेड एज वेल. ठीक है, और ग्रेडिंग का हमारे पास जो क्राइटेरिया रहेगा कि कौन किसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा है, उसके लिए होगा फिडेलिटी. सबसे पहला, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी ज्यादा डिटेल है, आपने कितना अच्छे से डिटेल और रेलिवेंट डिटेल. ठीक है, सिर्फ अमाउंट यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर रेलेवेंस भी काम करेगा. हाउ रेलिवेंट दोज डिटेल्स आर. और डिजाइन प्रोसेस काम करेगा यहाँ पर कि आपने जो डिजाइन बनाया हुआ है उसमें ज्यादा स्टेप्स हैं या कम स्टेप्स हैं. ठीक है, देन आप जो टाइम लगेगा इसमें कंप्लीशन में, जो टाइम लगेगा डिजाइन चैलेंज को बेसिकली, फॉर एग्जांपल अभी आपका डिजाइन चैलेंज है चेकआउट कार्ड स्क्रीन्स को डिजाइन करना. ठीक है, तो प्रॉब्लम इज दैट आप सबने फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस यूज की होंगी. यू वुड हैव यूज्ड द एप्लीकेशंस दैट डिलीवर फूड टू यू. देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद देम, राइट? कभी कभी क्या होता है, देयर इज टू मेनी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एट द चेकआउट, सो यूजर्स basically take more time in checking out, sometimes are confused, sometimes drop out before checking out. ठीक है, तो this is a problem that you can redesign the cart and checkout flow process to make it simple, clean and fast. यहाँ पर आपका अपना लाइक चॉइस होगा कि विच ऐप यू विल यूज फॉर दिस. ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप स्विगी का ऐप यूज कीजिए. व्हाटएवर यू यूज, दिस इज योर चॉइस. एप्लीकेशन कहाँ से आप कौन सी आप चूज करेंगे, दैट यू कैन डिसाइड. तो फॉर एग्जांपल इफ यू चूज स्विगी, आप उसका चेकआउट स्क्रीन देखोगे, चेकआउट की जो स्क्रीन्स होती हैं कुछ, उनको देखोगे, उनको आप रीडिजाइन करोगे अपने वायर फ्रेम से. मैं आज सिर्फ आपको इतना सिखाऊंगा हाउ टू बिल्ड अ वायर फ्रेम. ठीक है, मेरे पास जो ये स्क्रीन थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, दिस इज जस्ट अ लॉग इन स्क्रीन. ठीक है, ये सिर्फ लॉग इन स्क्रीन है एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेक वायर फ्रेम्स फॉर देम. दिस इज वेल डिजाइन. ठीक है, ये डिजाइन हमने मे बी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया हुआ है या फिर फिग्मा पर बनाया हुआ है, लेकिन वी कैन क्रिएट वायरफ्रेम्स फॉर दीज लॉग इन स्क्रीन एज वेल, और मैं वो दिखाऊंगा आपको. बस उसी को फॉलो अप करके यू हैव टू रीडिजाइन बेसिकली चेकआउट प्रोसेस ऑफ अ फूड डिलीवरी ऐप. ठीक है, और आपको फोकस करना होगा, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एक्स्ट्रा स्टेप्स या फिर जो कुछ चीजें होती हैं जो कंफ्यूजन कॉज करती हैं चेकआउट के टाइम पर. ठीक है, हैज एवरीवन टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए. जिसका स्क्रीन या फिर जिसके वायर फ्रेम्स में ज्यादा फिडेलिटी होगा, अच्छा अमाउंट ऑफ डिटेल होगा,
that will be graded as having more, that will be graded with more points. डिजाइन यानी कि लेसर स्टेप्स होने चाहिए, लेसर कंप्लीशन टाइम होना चाहिए, और फाइनली एस्थेटिक। देखिए आप एस्थेटिक को भी मैंने लाइक आई डिड नॉट कीप वेग मेजर्स देयर, आई हैव केप्ट विजुअल अपील विच बेसिकली मींस इज इट इजी ऑन आईज और नॉट, ठीक है, विल आईज एक्सेप्ट दैट डिजाइन और नॉट। देन फॉलोइंग द ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स, अभी आप सबको इनके बारे में पता नहीं होगा बट आई नो देम, ठीक है। सो आई विल यूज दोज प्रिंसिपल्स, जैसे कि इसमें सिमेट्री आता है, उसमें पैटर्न्स आते हैं, उसमें कलर डिजाइन आता है, ऐसे लाइक विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स में, ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स में आप वो सब यूज करेंगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। यू हैव टू यूज दिस पार्ट इंट्यूटिवली, ठीक है, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से। And finally, pleasing to look at. Basically, this criteria is more vague, लेकिन it basically means a screen जो आप बार बार देखना चाहोगे, ठीक है। अब हम what I will do next is I will share my screen and I will teach you guys how to do wireframing very quickly, and after that you can submit your solutions for the design challenge. सबको समझ आया? Yes, sir. बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए, these are the two screens that I basically have here. Now, what I will try to teach you guys is how to basically do wireframing for any screen. पहले मैं आपको wireframing दिखाऊंगा इन दो screens का, ठीक है? Why is the screen not refreshing? There's some issue. I'll just reshare my screen. Everyone able to see the screen now? Yes, sir. Very good. ठीक है। देखिए, in order to learn wireframing, I'll tell you some simple steps and simple things. जब हम क्विक wireframing करते हैं ना, देखिए wireframing हम करते ही क्यों हैं? So that you can quickly design solutions. Using Figma or design tools, it's time taking, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है in order to make things really good, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, then you have to kind of use the design tool as well. ये भी चीज है कि हम प्रोटोटाइपिंग करते ही क्यों हैं, उसका भी एक रीजन है, ठीक है, ये प्रोटोटाइपिंग का ही एक पार्ट है। Why do we make these applications that are not applications, जो सिर्फ applications का डिजाइन है? क्योंकि जो एक्चुअल वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट है, एक्चुअल डेवलपमेंट इज कॉस्टली, ठीक है। एक्चुअल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कॉस्ट जाता है, काफी ज्यादा टाइम जाता है, डिबगिंग करना होता है ना। आप सबको पता होगा उसमें कितना ज्यादा परेशानी उठती है इंसान को। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज इजी, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग इज इजी, वायर फ्रेमिंग तो उससे ज्यादा इजी। देखिए अगर हम पहली स्क्रीन यहाँ पर लेना, sorry, going to the screens, before going to the screens, I want to tell you things. जब भी हम wireframes बनाते हैं, पिक्चर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, we represent pictures with rectangles or squares with crosses in them, ठीक है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। एक नया रिप्रेजेंटेशन भी आया है, लाइक इट्स बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। पिक्चर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग अब, ठीक है, ऐसे, या फिर टू माउंटेन्स इन द सेम पिक्चर, और फिर ऐसे एक सन और समथिंग, ठीक है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पिक्चर्स। लेकिन सिंस
दिस वन इज मोर सिंपल, यही हम यूज भी करेंगे और यही जनरली यूज भी किया जाता है. There's a bit of a lag in the shared screen. I hope सबको स्क्रीन दिख रही है एंड समझ आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना? Yes. Yes, sir. बहुत अच्छे. In case of a confusion or something like that, please let me know. ठीक है, तो ये तो पिक्चर्स हो गई. और कौन सी चीजें होते हैं हमारे यूजर इंटरफेसेस पर? टेक्स्ट तो बहुत ही ज्यादा होता है ना. टेक्स्ट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्विगल्स से, या फिर लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइक स्केच लाइंस होती हैं. ठीक है, इससे जो बड़ा टेक्स्ट होगा, लार्ज साइज और फॉन्ट साइज, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा साइज को ऐसे, लाइक ड्रॉन हैंड ड्रॉन लाइंस से, या फिर बेसिकली यही है. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट टेक्स्ट. ठीक है, कोई कोई ऐसे भी करता है, लाइक आई हैव सीन वायरफ्रेम्स वेयर पीपल हैव बीन डूइंग दिस नाउ. छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स यूज किए. ठीक है, सो इफ यू फॉर एग्जांपल हैव अ ह्यूज हेडिंग, then you will represent it like this, and then इसके नीचे आप टेक्स्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. ऐसे भी करते हैं. ठीक है, दैट्स टेक्स्ट. एंड फाइनली वीडियोस भी होते हैं कहीं कहीं पर. वीडियोस का तो सिंपल है, वीडियोस का एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपके पास एक रेक्टेंगल है ऐसे, ठीक है, और उसके बीच में आप ऐसे प्ले बटन एक रख रहे हो, या फिर आप ट्राइंगल रखोगे, या फिर आप ट्राइंगल के अराउंड ये सर्कल भी रखोगे, ये वीडियो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. अब हम यही कुछ एलिमेंट्स यूज करके we'll try to like create the wireframe of the screen, login screen that I had shown you guys. तो सबसे पहले I will create the screen का outline. ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड साइज भी यूज कर सकते हो किसी एप्लीकेशन का. ठीक है, बट उसकी तरफ भी फोकस हमारा नहीं है. तो मैं यहाँ पर पहले देख रहा हूँ सबसे ऊपर देयर इज अ ह्यूज हेडिंग. तो I'll represent this heading with a squiggle like this. ठीक है, then there is some text in like on the bottom part. मैं छोटे squiggle से ऐसे वो represent कर सकता हूँ. Okay, let me do this part again. This is just a headline. उसके बाद ये squiggles, उसके बाद ये logo है. ठीक है, क्योंकि हम wireframes में often we keep some logos as well in login screens. तो you can basically represent this with a circle. Since it's a small image, I will keep a cross in it. ठीक है, ठीक है. और what else is there? इसको मैं छोटा सा करता हूँ थोड़ा. उसके बाद you can observe that the whole of the screen has an image in the background. ठीक है, actually ऐसे background में image है इस पहले ऊपर वाले part में. तो I can represent that image with this huge cross. ठीक है, और यहाँ पर यहाँ तक है वो image. ठीक है, there's a small car वाला image as well that goes beyond this image that we are showing here. So I'll represent that car वाला image using this structure as well. ठीक है, और then you have text. You have a text field now, a button, so to say. Buttons को कैसे represent करते हैं वो मैंने अभी नहीं दिखाया था. Buttons को ऐसे represent करते हैं. ठीक है, you basically create the shape of a button and उसके अंदर you basically write text, या फिर या तो ऐसे या फिर ऐसे, जैसे भी आपको ठीक लगे. सिंस यहाँ पर साइन इन एंड साइन अप सिर्फ दो ही बटन्स हैं, तो आई विल जस्ट कीप दिस शेप, rectangular shape like this, and within this I will just write like squiggles like this, and then this. सिर्फ ऐसे कर रख सकते हैं इसको ऐसे. तो जो आपका वन स्क्रीन है, इसके लिए वाई फ्रेम हमारे पास वन आ गया. दिस, अगर कोई भी इस वायर फ्रेम को देखेगा तो उसको नहीं पता चलेगा ना कि ये क्या है, क्या हो रहा है. तो what we do is we annotate. ठीक है,
हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं टाइटल, सब टाइटल, इसको कह दिया लोगो, इसको कह दिया बैकग्राउंड इमेज, BKG बैकग्राउंड, IMG बैकग्राउंड इमेज, इसको दिखा दिया एज एन इमेज ऑफ a small car, ठीक है, and then sign in button और sign up button। मैंने यहाँ पर काफी लाइक गंदा लिखा हुआ है ये, ठीक है, आई यूज्ड वेरी बैड हैंड राइटिंग, बट इफ यू आर डूइंग दिस प्रॉपरली एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर एन अवार्ड, जैसे कि आप सबको मिलेगा इफ यू डिजाइन लॉग इन चेकआउट स्क्रीन्स प्रॉपरली, तो इन दैट केस यू विल डू दिस वेरी डिलिजेंटली, ठीक है, आप इसको बहुत खूबसूरत तरीके में करोगे। जैसे हमने ये स्क्रीन एक बनाया वाईफ्रेम 1 के लिए, हम 2 के लिए भी वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है, मैं 2 के लिए भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट द स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेशल थिंग्स आर फॉर एनी लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ फॉर रेफरेंस। मैं फिर से एक स्क्रीन बनाता हूँ, दिस टाइम दिस विल बी फॉर द 2 स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर ही बैनर इमेज, एज अ बैनर इमेज यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। इस बैनर इमेज के विद इन ही आई थिंक मुझे ये कार दिख रही है, तो यू कैन, नो नो नो, दिस इज बेसिकली ये जो पीछे से ये शीट है, ठीक है, ऐप शीट कहते हैं इसको, इस ऐप शीट के ऊपर ये कार है, तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट इमेज रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। उसके बाद आपके पास एक लोगो आता है इसके ऊपर, ठीक है, तो यू कैन फॉर एग्जांपल डिफाइन द लोगो। एक्चुअली ये जो लॉगिन स्क्रीन है इसमें लोगो नहीं था, ठीक है, तो मैंने डेलिबरेटली एक सिंबल यहाँ पर रखा ताकि आपको बताऊं कि लॉगिन स्क्रीन्स में ऑफन पीपल यूज लोगोज एज वेल। तो उसके बाद यू हैव अ राइटिंग फील्ड, ईमेल, पासवर्ड, साइन इन एंड फॉरगॉट पासवर्ड। इसको हम बहुत सिंपल तरीके में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद स्क्विगल दिया बीच में, ऐसे लिखा, ऐसे बनाया, एंड स्क्विगल बीच में, एंड फिर ऐसे साइन इन के लिए बटन एक रखा, ठीक है, उसको सेंटर में स्क्विगल दिया ऐसे, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बटन आई विल जस्ट राइट अ स्क्विगल हियर, क्योंकि यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर कोई बटन नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट टेक्स्ट ऑन द राइट हैंड साइड, आप देख सकते हो कि फॉरगॉट पासवर्ड पर कोई बटन नहीं है। There's a bit of a delay. फिर से शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। It should be a bit faster now. I have changed the network. ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो ना राइट हैंड साइड से कि फॉरगॉट पासवर्ड पर कोई बटन नहीं है, तो देयर इज जस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही जस्ट टेक्स्ट रखा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है इससे। और कौन सी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, यहाँ पर एक आइकन है, उसके बाद साइन इन, एक आइकन, उसके बाद साइन इन, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक आइकन, उसके बाद साइन इन, एक आइकन, उसके बाद साइन इन, व्हाट एल्स इज देयर, उसके बाद देयर इज अ टेक्स्ट एंड साइन अप वाला लिंक, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस इज टेक्स्ट, ओके, उसके बाद साइन अप वाला लिंक। तो जो टू आपके पास यहाँ पर एक इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है, उसी के तर्ज पर मैंने यहाँ पर एक वायर फ्रेम भी बनाया है, इसकी एनोटेशंस आप खुद देख सकते हो बाद में, ठीक है, यू गाइस कैन एनोटेट इट योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर I told you कि there's something very important that I will give you from this today's session.
At least I'll tell you how login screens are designed well, और इनके पीछे what is the actual thought process that goes behind. For every login screen, मैं कुछ चीजें आपको बता कर रखता हूँ. Whenever you have to design a login screen, you basically do what? You think about the core elements. Core elements आपके पास ये होगा कि आपको ईमेल या फिर यूजर नेम को जरूरी रखना है कहीं पर, ठीक है. उसके बाद पासवर्ड भी चाहिए, और पासवर्ड को रिकवर करने के लिए कोई मेथड चाहिए, ठीक है. जनरली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन में ट्रेंड है, दैट लुक्स लाइक दिस. जो लॉगिन के लिए ईमेल एंड पासवर्ड का फील्ड है उसको पहले रखिए एंड प्लेस इट इन अ पोजीशन दैट इज फेवरेबल फॉर द यूजर, ठीक है. लाइक स्क्रीन के बीच में रखिए जहां पर वन कैन बेसिकली यूज द थंब एज वेल, ठीक है. तो थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं. उसके बाद वी विल यूज अ सिमिलर बटन, कॉपी पेस्ट, सिमिलर बटन फॉर पासवर्ड एज वेल. आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर ऊपर लेबल्स नहीं लिखूंगा, ठीक है. इंस्टेड मैं यहाँ पर अंदर ही लेबल्स लिख सकता हूं ऐसे: यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड. इसके अंदर भी कुछ ट्रेंड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है. कुछ लोग इन फील्ड्स को आजकल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिख लिया यूजर नेम, ठीक है, लेकिन अंदर से आप सैंपल लिख रहे हो बहुत ही हल्के से टेक्स्ट में, ठीक है. यू आर बेसिकली यूजिंग बहुत लाइट टेक्स्ट लाइक दिस जॉन डो. तो व्हाट दिस बेसिकली डज इज यूजर को इससे ज्यादा पता चलता है कि व्हाट दे हैव टू एग्जैक्टली डू, ठीक है. और आप सेम चीज करते हो पासवर्ड के लिए, लेकिन पासवर्ड में आप हिंट करते हो कि पासवर्ड है भाई, यहाँ पर कोई यूजर नेम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड यूज करना होगा. तो उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, ठीक है. और उसके बाद यू रिप्रेजेंट द फील्ड विद दिस, ठीक है, स्टार स्टार एस्टेरिक्स से. इससे यूजर को हिंट मिल जाता है कि दिस इज द पासवर्ड फील्ड, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है. तो हो गया पासवर्ड एंड दिस. उसके बाद यू ऑलवेज हैव अ लॉगिन बटन. आजकल ट्रेंड है कि लाइक द लॉगिन बटन इज द लार्जेस्ट, ठीक है. इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्क्रीन, बट आप इसको छोटा भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है. लेकिन ये है कि लॉगिन स्क्रीन का जो कलर है, दिस कलर शुड बी प्राइमरी कलर. जो भी आपका बिजनेस का प्राइमरी कलर है उसको रखिए, ताकि लाइक काफी ज्यादा फोकस आए इस बटन पर. और उसके बाद आप एक और बटन भी रख सकते हो यहाँ पर नीचे, ठीक है, क्रिएट अकाउंट के लिए. लेकिन जहां पर आप लॉगिन को एज अ फील्ड बटन रख रहे हो, फील्ड बटन मतलब होता है ऐसा कोई बटन जिसमें आपको आपने फिल रखा हुआ है, ठीक है. ऐसे आप प्राइमरी बटन्स बनाते हो. आपने फिल रखा हुआ है, इसमें आपने लॉगिन लिख दिया. वहीं पर जो आप क्रिएट अकाउंट वाला बटन बनाओगे उसको आप एक आउटलाइन बटन बनाओगे. तो जो ये फील्ड बटन्स होते हैं, दे टेक अप मोर अटेंशन, ठीक है, मोर अटेंशन ऑफ द यूजर. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन बेसिकली डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है. और जैसे कि आपको पता होगा, वैसे इसमें एक चीज हमें भूल गई, जो हमें लिखना चाहिए था पहले ही. पासवर्ड के ऊपर ही हम लिखेंगे उसको. आपको पासवर्ड रिसेट भी करना पड़ता है ना, लेकिन ये हमेशा हमेशा नहीं करना पड़ता है. तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे, क्या जरूरत होगा, एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो सिंपली, फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है. लेकिन आप इसको एक हाइपरलिंक बनाकर रखोगे, अ लिंक दैट कैन बी क्लिक्ड ऑन. तो इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द यूजर, क्योंकि इस टेक्स्ट का साइज काफी छोटा है. एंड या इफ एनीवन रियली नीड्स दे कैन क्लिक ऑन इट. उसके बाद देयर इज अ न्यू ट्रेंड, जैसे कि यू कैन साइन अप और लॉग इन विद गूगल, ठीक है, या फिर लॉग इन विद फेसबुक या मेटा या वट एवर इट इज, ठीक है. क्या क्या होता है, गूगल होता है ना, मेजरली तो हम गूगल से ही लॉग इन करते हैं, बट यू कैन कीप अदर ऑप्शंस एज वेल. दीज आर सम इम्पोर्टेंट ऑप्शंस फॉर अ लॉग इन स्क्रीन, ठीक है. और इसके बाद आपके पास ये भी आता है कि आप
ऊपर वाला जो स्पेस है उसको यूज करते हो अपने लोगो के लिए। फॉर एग्जांपल कोडराइड हब के लिए वी कैन थिंक ऑफ अ रियली कूल सिंबल। अभी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है कोडराइड हब के लिए एग्जैक्टली, बट वी कैन थिंक ऑफ समथिंग। और एक ऐसा लॉगिन स्क्रीन इज बेसिकली डिजाइनर्स इस ऐसी लॉगिन स्क्रीन को 10 out of 10 देंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी एग्जैक्ट। आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दिख रही हैं और अटेंशन भी उन्हीं की तरफ जा रहा है, और यू आर बेसिकली प्रमोटिंग योर ओन ब्रांड एज वेल, ठीक है। तो ऐसा एक लॉगिन स्क्रीन डिजाइन आप बेसिकली रख सकते हो जनरली। ये दिस इज गुड लॉगिन स्क्रीन डिजाइन। चलिए, लेकिन मैंने जो अभी आपको दिखाया इसमें थोड़ा सा फिडेलिटी है, इसमें थोड़ा सा डिटेल है। आपका जो असाइनमेंट है चेकआउट कार्ट के लिए वायर फ्रेम्स बनाना, राइट? सो उसके लिए यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, यू कैन सिंपली क्रिएट स्क्रीन्स लाइक दिस एज वेल, ठीक है, जिसमें आप एनोटेशंस दे रहे हो और वायर फ्रेम्स दे रहे हो। टेल मी एवरीवन, कोई क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन्स सो फार related to all of this? No. ठीक है, okay. That's basically it. Okay, we have covered most of the things we needed to for today's session. Quickly हम एक rewind करते हैं, ठीक है? We will quickly rewind what we covered in today's whole session. So we started off with an introduction to what design is and what art is. ठीक है? We try to understand the difference between the two, and we understood what good design is. Good design focuses on functionality first and then moves on to visual appeal. We understood the example of doors. We can understand user experience by the small example of doors. Then we understood the difference between user experience and user interface design. We understood that interface design में हम visual appeal की बात करते हैं, लेकिन experience design talks about the overall experience, ठीक है? इसमें सिर्फ interface design नहीं आता है, overall user interact कैसे करेगा किसी product के साथ, all of that is covered. We understood a little bit about the scope of UI UX in jobs या फिर in different sectors. Then we understood कि अगर अच्छा डिजाइन होगा, how that will affect a business. Okay, it will increase the conversion rates of the business, it will increase the accessibility and user satisfaction. We understood some processes, some frameworks behind UI UX design या फिर design of softwares, जिसमें Stanford design thinking was the approach we talked most about, and we took a really good example of trash cleaning for this as well. And I told you कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी अपना ही प्रोसेस भी बना सकता है based on their requirements. Then we understood, we did not cover the tools part properly, ठीक है, लेकिन generally Figma is considered as the most important tool for UI UX design. ओके, फिग्मा आज की क्लास में हम नहीं कर पाए। आई वाज होपिंग कि जो हमने स्केच पेपर एंड स्केच वायर फ्रेम्स किए थे, वी विल टेक देम एंड वी विल लाइक यूज फिग्मा ओवर देम ओनली, बट वी कुडंट। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए वी यूज फिग्मा एंड स्केच। डिजाइनिंग के लिए ओवरऑल वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स, जैसे कि फिग्मा हो गया, स्केच हो गया। Then you have testing के लिए there are some couple of fields, couple of tools as well. User testing is the most important tool for that. User testing is literally the name of the tool. Okay. And then we understood wireframing, ठीक है, in which I told you कि एक wireframe क्या होता है, आप कैसे एक wireframe बना सकते हो, what different things will represent different aspects of a user interface. I told you कि annotations आप रख सकते हो अपने wireframes में, ठीक है. And then finally I told you guys about low fidelity, high fidelity as well. Low fidelity में only the structure of the page or an interface is kept, while in high fidelity you keep the typography as well, the colors as well, and the final look and feel of the screen. And then finally we did what? This redesign part we could not do,
short time, too much time would be required for this, but we understood how to create wireframes for screens like this in a demonstration yahan par hi. And then I told you guys there's a small assignment you guys can try for, okay? A small design challenge. Take any food delivery app, उसके जो चेकआउट स्क्रीन है उनको देखिए, उनके स्क्रीनशॉट्स उठाइए, and then what you can do is you can redesign, you can create a design of your own. जैसे मैंने इस स्क्रीन का वायर फ्रेम डिजाइन बनाया था एनोटेशंस के साथ, आप अपना ही डिजाइन बनाओ इन चेकआउट स्क्रीन्स का, एंड द फोकस शुड बी ऑन क्लियरर डिजाइन स्टेप्स, क्लियर स्टेप्स ऑफ चेकआउट, ठीक है, ताकि चेकआउट का प्रोसेस बेहतर हो। और उसका ग्रेड करने का क्राइटेरिया होगा, जितना ज़्यादा डिटेल होगा, अच्छा रेलेवेंट डिटेल, जितना डिज़ाइन अच्छा होगा, लेसर स्टेप्स, लेसर कंप्लीशन टाइम, एंड फाइनली लुक एंड फील भी अच्छा जिसका होगा वायर फ्रेम्स का। Based on this, you guys will be given some kind of a prize as well, ठीक है? So yeah, basically that is it for today's session. Thank you so much for the time that all of you have taken for today's session. We might have more sessions like these, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि UI UX design is a really big field. मैंने बोला भी generally boot camps will take up to 6 months. लेकिन I have tried my best to compress a lot of information in just a small 2-hour session. आज का 2-hour